Now I would like to request Dr. Jafar Ali to welcome Director, Indian Institute of Sustainability, Dr. Sudhanshu Jangir. Now I would like to request Dr. Ansar to welcome Dr. Amjad Ali Abbasi, Principal of Government Degree College, Dras. Now I would like to invite Dr. Ghulam Ali to welcome Shri Muhammad Abu Dojana, Principal of Mutahari Public High School, Saleskut. Now I would like to request Dr. Muhammad Taqi to welcome Shri Muhammad Ali, Headmaster, Government Middle School, Kargil. Put your hands together, ladies and gentlemen. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Today's chief guest of the program, the respected Dr. Sudhanshu, Director, Indian Institute of Sustainability, University of Gujarat, Dr. Amjad Ali, Principal, Government Degree College, Dras, Mr. Abudija, Principal, Mutahari Public School, Saleskot, Kargil, Mr. Muhammad Ali, Headmaster, Government Middle School, Kargil, the faculty members, students from Gujarat University, and the students of Kargil campus. Good morning to all. Really honored to welcome Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Mehta, the chief guest of today's program. We are grateful to you, sir, for accepting our invitation and devoting your valuable time from hectic schedule for the students of Kargil campus. Your presence will go a long way for the students in pursuit of studies brilliantly in the university campus. To grace the occasion today, we have presence of Dr. Sudhanshu, Director, Indian Institute of Sustainability, Gujarat University. I welcome you and grateful for your participation. I also welcome Dr. Amjad Ali, Principal, Government Degree College, Principal, Mutahari Public School, Mr. Muhammad Ali, Middle School, Kargil, and all the faculty members. So ladies and gentlemen, please put your hands together for IIS students.
glimpse of the culture through a traditional dance. Now we have another group performance by Art and Culture Organization Muthabu. So I request them to please come on stage for the performance. महबूब मेरे
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। है वतन तेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे। Now, one of our special guests from Indian Institute of Sustainability, Gujarat University, will be presenting a solo dance. So, I request Avni Alia come on the stage to present your dance. Now, I request Kargil campus students to come on stage and present the Basti song. Now, I would like to invite Yatso and Dr. Salim for a song performance. शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का
Ladakh would like to felicitate the invited guests as a token of appreciation for your precious time. And to do this honor, may I request Worthy Director, Kargil Campus, Madam Kanis Fatima. First, may I very kindly request Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor S.K. Mehta, for a memento as a token of appreciation from Kargil Campus. May I request Executive Councillor of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, to come on stage for a memento as a token of appreciation. Put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you so much, ma'am. May I request Director ma'am to present Indian Institutional Sustainability Dr. Sudhanshu Jhangir to present a memento, please. Put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you so much. I, Zakia Banu, from the Department of Chemistry, would like to share the experience which we have experienced during the exposure tour. Before going ahead, I would like to welcome the Indian Institute of Sustainability team, University of Gujarat. Welcome to Ladakh. We are so thankful to the Vice Chancellor of University of Ladakh, Surendra Kumar Mehta sir, and to the Vice Chancellor of University of Gujarat, Professor Himanshu Pandya sir, for making such student exchange program. In Indian freedom movement, either it is Mahatma Gandhi or Sardar Patel, we all know that the Gujaratis contributed a lot in the development of the country. But I also would like to give अभिनंदन और आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ कि द्रास के लोग अगर नहीं होते, कारगिल के अगर लोग नहीं होते, तो क्या कारगिल हमारा रह पाता? आप लोगों के 99 में जो आप लोगों ने किया, आप लोग उसी सम्मान के हकदार हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मिला है. सो आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुजरात की पावन धरती पर. Indeed, I want to touch the ground of this holy land because I was told by many people that the people especially from Dras, they have contributed so much that even without their help, Indian Army could not achieve what they could achieve. So again, specifically, there is also one principle of Dras. So thank you very much. Now, I would like to request respected Executive Councillor, LHDC Kargil, Shri Sayyid Abbas Rizvi, to share his valuable thoughts on the occasion. सबसे पहले मैं आप लोगों से खासकर ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर साहबान से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हम लेट हुए हैं आपके इस प्रोग्राम में आने में. तो मैं आप तमाम और सभी स्टूडेंट से माफ़ी का तलबगार और माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा सीसी साहब का इसमें आने का प्रोग्राम था. तो दूसरी बात, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब का आने का प्रोग्राम था. इसमें दोनों जो है बिजी शेड्यूल की वजह से अनफॉर्चुनेट तो आ नहीं सका. तो लास्टली मुझे यहाँ पे सीसी साहब के हिदायत पे यहाँ पे आना पड़ा. महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका. Now, with deep sense of honor and gratitude, I would like to request Honorable Vice Chancellor Sir, University of Ladakh, to come on stage for keynote address. We have today this induction cum cultural exchange. So basically, I think induction program was planned, and it is now clubbed with this cultural exchange because a strong team from Gujarat University is visiting University of Ladakh. Initially they went to Leh and then now they are at Kargil. So I think this idea of exchange arose long back when I joined
University of Ladakh. Naturally, I had many ideas in my mind, so I started collaborating, that is, with many of the institutes. So one of the institute is Gujarat University. Incidentally, I knew Vice Chancellor of Gujarat University. He is my good friend since long. So when I contacted him through my good friend Professor V.K. Jain, and then after the discussions, we thought that we should sign a MOU between the two universities. Naturally, University of Ladakh is a new university, whereas Gujarat University, as you know, that it is #1 university in Gujarat, and it's a very old university. Even Prime Minister Narendra Modi also studied there. Many such dignitaries have studied there. So we also want that University of Ladakh also maybe produce a Prime Minister, President, or leading dignitaries from this university. So with that goal, we are moving very fast. I have signed already many MOUs. Gujarat University MOU is one example. National Forensic Science University MOU we signed, and IIT Jammu. Then we have IIM Jammu, and so many. There is a long list, and you will see that in the coming days, in coming months, we will have more exchange programs between institutes and University of Ladakh with leading institutes of the country. See, the main idea is that when our students go to these leading institutes, they learn many new things. And when their students come here, Ladakh is a unique place. When they come here, they really enjoy staying here and participating in different activities of University of Ladakh. Respected Professor S.K. Mehta, the Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Janab Syed Abbas Rizvi, the Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Dr. Sudhanshu Jahangir, the Director for Indian Institute of Sustainability, Gujarat University, Madam Kaniz Fatima, the Director for Kargil Campus, University of Ladakh, Dr. Anjil Ali Ambasi, the Principal for Government Degree College, Dras, Principal of Mutahari Public School, Saleskut, Kargil, Principal of Government High School, Kalit, faculty members, students, a very good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to stand before you to deliver the final vote of thanks. On behalf of Kargil Campus, University of Ladakh, I convey deep regards and gratitude and hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Mehta, for gracing the occasion with his august presence. Sir, we are very thankful for your consistent guidance and moral support, and we believe that under your able and dynamic leadership, the university shall prosper and touch will greater heights. We are all inspired by your gracious presence, sir. I would like to thank Janab Syed Abbas Rizvi, the Honorable Executive Councillor, for taking time out of his busy schedule and gracing the occasion and sharing his enlightening and valuable thoughts with our audience. LSDC Kargil is always being a very supportive institution for the university. For that, thanks a lot, sir. I would like to take this opportunity to thank our special guest, Dr. Sudhanshu Jahangir from the Indian Institute of Sustainability, Gujarat University, and his team for joining us on this occasion all the way from the Gujarat, sir. Sir, we have a very famous Ladakhi proverb which goes as, the land is so barren, the passes are so high, only the best of the friends will visit us, sir. So thank you for being the best of the friends. Sir, on behalf of Kargil Campus, I express sincerest thanks for mesmerizing performance of your students. We are extremely thankful to our worthy director, ma'am, for her minute-to-minute guidance and support, and for being a source of encouragement at every point for the successful organization of this event. Thank you, ma'am. Thanks a lot. जिस तरह ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हो, सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल करगिल में हम मौजूद हैं, जिसमें इंडक्शन कम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात द्वारा तो बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की कल्चरल प्रोग्राम के हवाले से। तो मेरे साथ कुछ दो गेस्ट भी जुड़ेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हम साथ ज्वाइन होने के लिए। नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे मैम? मेरा नाम मनीषा मिश्रा है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम देवांशी व्यास है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी से MBA इन एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट में MBA कर रही हूँ। जी, तो मैम मेरा सवाल यही होगा, एक दो सवाल मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहाँ गुजरात और कहाँ लद्दाख काफ़ी डिफरेंसेस है मैम। अगर हम कल्चरल में बात करें, लैंग्वेज में बात करें, खान पान में अगर हम बात करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, गुजरात तो बहुत आगे निकल चुका है मैम। तो कैसा लगा, सबसे पहले तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ व्हेन यू लैंडेड इन लद्दाख? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आई मीन लद्दाख कोई दूसरी देश नहीं है। आई मीन ये हमारा भारत का ही पार्ट है। तो मतलब हाँ दूरी है, बट वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट है लोगों से। अभी कुछ समय पहले ही हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, उनसे हमारा काफ़ी अच्छा अटैचमेंट हुआ था, जो कि हम जब यहाँ आए तो उनकी आंखों में ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। और सर यहाँ एक्सपोजर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, ये सब में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यहाँ किए जा सकते हैं। आप डायरेक्ट लेह उतरे या श्रीनगर हो गया? जी हम जम्मू उतरे पहले, फिर श्रीनगर, जोजिला पास होके जी फिर कारगिल होके लेह गए हैं। तो अपना एक्सपीरियंस था उस जर्नी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वहाँ जम्मू से श्रीनगर पूरा ग्रीनरी था, एक अलग माहौल था, अलग सिनारिया था। फिर यहाँ आए तो यहाँ रॉक, सेडिमेंट रॉक्स का पहाड़ था, तो वो दोनों डिफरेंट हमें एक ही जर्नी में देखने को मिले, वो बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि जहाँ मुश्किलें होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम गुजरात में ऐसा डेवलपमेंट देखते तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी के साथ मिलकर कुछ यहाँ स्टार्टअप वगैरह करें। और इसी तरह, क्योंकि स्टार्टअप ही एक ऐसा तरीका है जिससे कुछ डेवलप हो सकता है। आखिरी सवाल होगा आपसे, फिर मैं आपसे एक मैसेज लूँगा। कल्चरल प्रोग्राम भी आपने देखे, आपके भी देखे, और हमारे लद्दाखी कल्चरल प्रोग्राम भी देखे, कैसा लगा, कैसा फील हुआ? और जो आना चाहते हो लद्दाख, क्योंकि करगिल पहले तो वर्ल्ड मैप में ही नहीं था। करगिल को एक जंगी मैदान माना जाता था और एक मिलिट्री जगह करगिल को माना जाता था। सिर्फ लेह को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब आपने खुद अपने आंखों से करगिल को देखा, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के लोगों को मिला, स्टूडेंट्स से भी आप लोगों ने एक्सचेंज की। तो जो आना चाहते हो गुजरात से या इंडिया के बाकी जगहों से आना चाहते हो, क्या मैसेज रहेगी आपकी? उनके लिए वेलकम है। आई मीन इंडिया के हर एक छोटे से कस्बे हो या कोई भी गांव हो, सबकी अपनी एक कल्चर है। और करगिल और लेह की जो ऑथेंटिक, मतलब वो कहते हैं ना, एक ड्रेसअप, आई मीन सभी कल्चर, सब कुछ डिफरेंट है। खाने का तरीका, आई मीन वो किस तरीके से, उनका हर एक काम ही डिफरेंट है। मतलब आई थिंक अभी सभी कल्चर में हम गुजरात के हैं तो हम गुजरातियों का अलग होगा, ये लद्दाख के, तो वो कल्चर देख के आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक ये एक्सपोजर लेना चाहिए कि हाँ ऐसी भी कोई कल्चर होती है, कि ये एक इंडिया को और ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है इमोशनली, एंड आई थिंक कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है, जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, आई मीन वो अभी एक प्रधानमंत्री जी के तरफ से एक वो चल रहा है सर, GI टैग, तो उस सब में काफ़ी यहाँ की एक नेटिव चीज़ें जो होती हैं उनको GI टैग वगैरह काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो आखिरी सवाल होगा आपसे, एक मैसेज के साथ, और मौका मिले तो आप लद्दाख और आओगे? जी बिल्कुल, मैंने आगे भी कहा कि जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ तो सब एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अभी देखा है कि हम टूरिस्ट भी लद्दाख में बढ़ रहे हैं, तो लद्दाख में टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है। और टूरिज़्म के साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो लद्दाख के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर मैं लद्दाख के लोगों की बात करूँ तो हम चाहे रंग रूप कल्चर से डिफरेंट हो, बट वी आर द इंडियंस। सो हम एक माला में गुथे हुए डिफरेंट फूल है, तो हम एक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े थे। अपने एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट टाइम आप लोगों का फर्स्ट टाइम विजिट होगा लद्दाख में, पहली बार विजिट है लद्दाख में। अपने एक्सपीरियंस कल्चरल के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बराबर हमारे लाइव नशरिया देखने वालों के साथ शेयर कर रहे साथ। और एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने रिसेंटली, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, रिसेंटली JRF जो है इन्होंने क्वालिफाई की है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नुमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सबसे पहले अपना नाम, कॉलेज और थोड़ा बहुत अपना शेयर करोगे, बेसिक स्कूलिंग आपने कहाँ से की और आपका बर्थ प्लेस, होम टाउन? Yes sir, my name is Masme Bano. I am from Barso. I had done my matric from the Mutahari Public School Baru, and then for the high secondary education I joined the government high secondary school Kargil Girls,
and then I had graduated from the Kargil Government Degree College Kargil, and then I recently completed my MSc in chemistry from the University of the Ladakh, and I had qualified the JRF examination, the CSNET examination at the first attempt, sir. तो यूर फ्रॉम बरसो नाला आई मीन सब डिवीज़न सांको। तो अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, एजुकेशन के हवाले से बात करें, काफ़ी हमें प्रोटेस्ट और काफ़ी हमें कंप्लेंट्स बरसो इलाके से हमें देखने को मिलता है। तो आप एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, क्या सजेस्ट करोगे हमारे लाइव नशरियात देखने वाले को, कंसर्न को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? एजुकेशन और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी पिछड़े हुए इलाके हैं। Yes, sir. We have many type of the talented students in our region, but I think this level of education should be increases so much so that our students can show their talents also, and I think our students can do best and best for our district, for our country, India. So my last question for you: what will be your fruitful message for the people of Kargil, especially Ladakh, and concerned who watching this channel live on Gulistan and JK24? Your message related to education and development and infrastructure. My message is towards the students especially, do best and try to achieve your goals, and by hard working, by efforts, and remain in your way and make your dreams full. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कोशिश कर रहे थे हम अपने तरफ से आज के इस इवेंट को लेके, प्रोग्राम को लेके विजुअल्स जो है हमारे नाजरीन तक पहुंचाने, और दो गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। सबसे पहले तो मैम बहुत आप लोगों को वेलकम करते हैं लद्दाख में, मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आप लोगों को वेलकम करते हैं। आप लोगों का दोनों का मेरे ख्याल में पहला ही विजिट होगा, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा, आप अपना नाम बताओगे और जो कोर्स आप कर रहे हो, और साथ ही साथ जो ही आप लद्दाख पहुँचे क्या एक्सपीरियंस? मेरा नाम वैभवी शाह है, मैं एमएससी करी हूँ एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट में गुजरात यूनिवर्सिटी से। यहाँ का आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले तो ट्रैवलिंग मतलब बहुत लंबा है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस काटने का बहुत लंबा है, पर ट्रैवलिंग में भी जो माउंटेन मतलब जो सीनरी है, माउंटेन्स है, वो सब बहुत अच्छा लगा देखने में, और वो सब। बिल्कुल। तो आप लोग वाया श्रीनगर ही हो क्या है ना मैम? जी जी जी। तो वहाँ तो प्लेन होंगे गुजरात में, तो यहाँ पहाड़ी और जोजिला पास क्रॉस करके, तो कैसा लगा एक्सपीरियंस जोजिला? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि हम जैसे कि हमने बोला कि हम लोग एग्रीप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये एक्सपोजर का यही है कि यहाँ का क्लाइमेट का चेंज पूरा ऑब्जर्व करें, यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है वो वगैरह ऑब्जर्व करें। ये हमारा मेन मोटिव था, इसीलिए हम लोग वाया प्लेन छोड़ के बाय रोड ही आने का सोचे कि हम लोग पूरा एक्सपीरियंस करना चाहते थे, हम लोग खुद जानना चाहते थे कि क्या है पूरा। जी। तो कल्चर प्रोग्राम भी आपने देखे मैम गुजरात के, तो आपको पता है कल्चर प्रोग्राम कैसा लगा यहाँ का यूनिक, क्योंकि लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैम, आप लोगों को तो ब्रीफिंग में भी दी होंगी, लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है कल्चर में, ज़बान में, लैंग्वेज में, हर चीज़ में काफ़ी रिच है। कैसे लगा हमारा कल्चर प्रोग्राम? बहुत स्मूथ है उनका लैंग्वेज, मतलब एकदम बोलते तो भी स्वीट और एकदम शांत बोलते हैं ना, वैसा है उनका लैंग्वेज। और यहाँ का उनका जो वेलकम का स्टाइल है वो सब अच्छा है, उनका मतलब पूरा कल्चरल जो है एक्टिविटी है, कॉस्ट्यूम है, सब वगैरह सब बढ़िया है। आखिरी सवाल होगा मैम आपसे, और आना चाहते हो लद्दाख आप लोग, अगर मौका मिले तो फिर लद्दाख आप आएंगे, आपके अलावा और भी आना चाहते हो, उनके लिए क्या मैसेज लेके जाएंगे? कि सभी लोग जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल देर ना करिए, बस पहुँच जाओ लद्दाख, आ जाओ बस, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमको भी लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि वापस जाएं नहीं, बस थोड़े दिन और रह कर जाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन वक्त कम है इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े थे, अपने एक्सपीरियंस जो है वो खिते लद्दाख में, अपने एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, और एक गेस्ट भी जुड़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम करते सर आपको खिते लद्दाख में पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी के द्वारा। थोड़ा बहुत अपने बारे में आप पहले शेयर करोगे, उसके बाद में फर्दर सवाल आते हैं। मेरा नाम अक्षत मेहता है और मैं MBA डिपार्टमेंट से हूँ, फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, राइट। वो हमारा एक ही एम है कि हम तो ग्रो करें ही, हम सब साथ में मिलके ग्रो करें, और हमारा जो कोलैबोरेशन है ये MOU, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही ये है कि आप बिजनेस सेट करो, स्टार्टअप सेट करो, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप सेट करो, और उसको सस्टेनेबल इस तरह बनाओ कि हमारा भी भला हो और हम सबका भला हो। तो आपका तो पहला विजिट होगा लद्दाख में, कैसा एक्सपीरियंस?
कैसा लगा? हमारे पहाड़ी इलाका है, आप लोगों की तरफ प्लेन तो है नहीं, कल्चर प्रोग्राम भी आपने देखा, तो क्या एक्सपीरियंस आपने ली? और जो आना चाहते हैं लद्दाख, क्या मैसेज आप लेके जाओगे? सबसे पहले तो मार्क माय वर्ड्स कि लद्दाख जितने स्ट्रॉन्ग लोग कहीं पे नहीं मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग, काइंड, हारमोनियस, यहाँ पे कम्युनल हारमनी देखी गई जो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे लोगों में नम्रता देखी गई, प्यार देखा गया, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे इतना एक्सट्रीम कंडीशन, डाइवर्स, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के बाद भी लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट भी करते हैं, हॉस्पिटेबल है, बहुत अच्छा है। और जो लद्दाख आना चाहते हैं तो वक्त मत गवाइए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लद्दाख आप दिल खोल के आपका स्वागत करता है, हाथ फैला के आपका स्वागत करता है। बाकी का दिन लद्दाख में ठंडी रहता है तो उसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे कुछ गेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, अपने एक्सपीरियंस जो है लद्दाख में वो अपने साथ शेयर। मेरे साथ कुछ और छात्र जुड़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, जिन्होंने रिसेंटली गुजरात टूर करके एक्सपोजर टूर के लिए इन्हें गुजरात ले गई थी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा गुजरात में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम और क्लास बताएं। जी, मेरा नाम सिद्दीक़ा बानो है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी MSc थर्ड सेम के स्टूडेंट हूँ। तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के टूर पे गई थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर मैम और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर को, क्योंकि उनकी इस इनिशिएटिव की वजह से हमें एक्सपोजर टूर का मौका मिला। तो एक्सपोजर टूर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमें वहाँ पे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि जब हम यहाँ स्टार्ट किया था जर्नी तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत कोल्ड है। और जितना हमें जर्नी हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हुआ। तो लेकिन हम लोगों ने बहुत मैनेज किया टेम्परेचर को, तो बट वहाँ पे जाके हमें बहुत एक्सपोजर मिला है। वहाँ की बहुत स्टूडेंट जो है, वहाँ की IISS की डायरेक्टर जो है, उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, बहुत अच्छे से वेलकम किया हम लोगों का। और उनके स्टूडेंट का टीम ने तो बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अच्छे से वहाँ पे हेल्प किया जितने भी हमें चाहिए। और वहाँ पे अकोमोडेशन और जो फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, जो हम कह नहीं सकते कि वहाँ पे कैसा अकोमोडेशन था, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे लर्निंग की बात करूँ तो हमें बहुत एक्सपोजर मिला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सेशन वहाँ पे हुआ। सेशन की बात करूँ तो वहाँ पे हमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के ऊपर एक सेशन हुआ। और हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल के और बाकी हम कैसे हमारे यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उसके ऊपर बहुत सारे वहाँ पे सेशन मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे डिटेल में जो गुजरात आप लोग गए थे टूर पे, डिटेल में आपने ब्रीफ करा दी। थोड़ा बहुत आप शॉर्ट में आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस जो है थोड़ा बहुत शेयर करोगे, बाकी डिटेल जो है ऑलरेडी इन्हें बता दें। आप ब्रीफ में आप अपना नाम, क्लास और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करोगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चोचो सकीना है। मैं MSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट हूँ। और हम जो हर डिपार्टमेंट में से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस से हर डिपार्टमेंट में से 5-5 नफ़र हमें सेलेक्ट किया गया था। और ये हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें सेलेक्ट किया गया था हमारे टीचर्स ने। तो हम जब यहाँ से गए तो जैसे इसने बताया, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हुए हमारे साथ, सच टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो हमारे जो टीचर्स ने, हमारे साथ 2 टीचर्स थे, एक जो है हमारे कारगिल कैंपस से थे और एक LA कैंपस से थे। और उन दोनों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया ट्रेन में कि कैसे हमें ट्रैवल करना है। ये हमें नहीं पता था, क्योंकि लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो है ये फर्स्ट एक्सपोजर टूर था। तो बहुत अच्छा लगा। और जब हम गुजरात पहुँचे तो IIS के स्टूडेंट ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। और इसके बाद हमारा जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तब चाहे अकोमोडेशन के लिहाज से हो, चाहे खाने पीने के लिहाज से हो, चाहे हॉस्पिटलिटी के हिसाब से हो, हमें किसी भी चीज़ में कोई भी कमी होने नहीं दिया। IIS के स्टूडेंट ने बहुत हेल्प किया हमारा, तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो हमारे रिसेंट स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के रिसेंटली एक एक्सपोजर टूर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ले गए थे। हमारे साथ और 2 नमो हमारे साथ जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेला बानू है और मैं MSc बॉटनी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। और हम पिछले कुछ दिनों पहले हम गए थे गुजरात यूनिवर्सिटी। पूरा जर्नी फुल ऑफ एक्सपोजर था, चाहे हम लद्दाख से निकले और फिर अलग अलग जगह स्टेट से निकल के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात, पूरा जर्नी, पूरा रास्ता बिल्कुल एक्सपोजर था।
फुल ऑफ एक्सपोजर था। और हम बहुत थैंकफुल है हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे एक्सपोजर्स बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। हम साइंस स्टूडेंट्स हैं लेकिन फिर भी हमें वहाँ इंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, कैसे रिसर्च करना है, आपको कैसे टॉपिक चूज़ करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे अच्छे जगहों पे हमें ले गए, गुजरात के फेमस प्लेसेस पे, और पूरा जर्नी फुल ऑफ एक्सपोजर था। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स करते रहे। जी बहुत। तो मेरा आखिरी स्टूडेंट है मेरे साथ, रिसेंटली टूर की है गुजरात यूनिवर्सिटी के। थोड़ा बहुत सबसे पहले तो अपना नाम, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप शेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़किया बानो है और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। जो हमारा एक्सपोजर टूर था गुजरात के लिए, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे सेशंस उन्होंने रखे थे अबाउट रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, हाउ टू डील विद फियर, क्योंकि हमें ज़्यादा ये होती है पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ज़्यादा हमें फियर होती है, तो उन्होंने वो भी सीखा हाउ टू डील विद फियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप थे उनके बारे में बताया गया वहाँ पे कि कैसे अपना स्टार्टअप कंपनी खड़ा कर सकते हैं हम। और हमें गांधी आश्रम, उन्होंने अपने हिसाब से हमें गांधी आश्रम में लिया और हमें अमूल फैक्ट्री में विज़िट करवाया उन्होंने, जहाँ पे हमने उनके जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थे वो देखे। कितने दिन के टूर था? 5 डेज़ टूर, आना जाना सब देखे, 15 डेज़ का, लगभग 15 डेज़। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर जो गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं, दोनों के बहुत ही थैंकफुल है। और हम टीम IIS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी, उनके भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने एक अच्छा सा एक्सपोजर टूर ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे लिए। और जो हॉस्पिटैलिटी था वॉज वेरी नाइस देयर, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ उन्होंने ये काइंड हार्टेड थे, वो बहुत अच्छे थे। और जो भी अरेंजमेंट किए गए थे वॉज वेरी नाइस। सो वंस अगेन हम बहुत ही शुक्रगुजार है टू द वाइस चांसलर ऑफ लद्दाख यूनिवर्सिटी and Vice Chancellor of Gujarat University and team of IIS Gujarat University. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, जो रिसेंटली गुजरात के टूर पे थे एक्सपोजर टूर के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने इन्हें टूर के लिए, एक्सपोजर टूर के लिए भेजी गई थी। अपना एक्सपीरियंस जो है गुजरात में वो शेयर कर रहे थे हमारे लाइव नशरियात जो देख रहे हैं, गुलिस्तान पर लाइव है, जो JK 24 न्यूज़ लद्दाख पर लाइव है, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो लद्दाख यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन हुए हैं, जिनका ऑब्जेक्ट यही है कि एकेडमिक और कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए, और जो उनके एक्सपर्टीज़ हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को, उनको हम अपने यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज़ करें स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के लिए, बेनिफिट के लिए और ओवरऑल कैंपस की डेवलपमेंट के लिए, कि हम ये एक कोलैबोरेशन में ऐसे इनिशिएटिव्स ले लें कि जो आगे बेटर एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में। मैम यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो नए नए एस्टेब्लिशमेंट है मैम, नया नया सेटअप है यूनिवर्सिटी। एब्रोगेशन के बाद हमें 2 ही साल हो गए मैम, तो काफ़ी इश्यूज़ भी आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की बात करें तो रिसेंटली काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आए थे, तो एज ए डायरेक्टर इस तरह के इश्यूज़ को ऑन स्पॉट आप किस तरह एड्रेस करोगे मैम एज ए डायरेक्टर? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हो गया है इंडिपेंडेंटली, UT के बाद थी, उससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ थे, तो ये अभी इन्फेंसी स्टेज पर है। तो नेचुरली यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बहुत हद तक हम इन चैलेंजेस को, हम ऑब्स्टिकल्स के ऊपर हम काम करें कि हम किस तरह से अपने एक एनालिसिस करके कि हम अपने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स को कैसे एड्रेस करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और दोनों कारगिल कैंपस भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ मिले, और मेनली जो यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड लेवल का, हम उसे मेंटेन करके उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 दिन से हम UT कारगिल के अंदर हैं और हमने यहाँ के काफ़ी सारे प्लेसेस को विजिट किया। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, मेडिसिनल प्लांट के अंदर है, एरोमेटिक प्लांट के अंदर है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल टूरिज़्म।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि जैसे कि आप जानते हैं अहमदाबाद यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, यहाँ के बच्चे वहाँ पे आके सस्टेनेबल टूरिज्म सीख सकते हैं और जॉब की एज एंटरप्रेन्योरशिप की नई संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। सर खासकर जैसे आपने सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की, करगिल की बात करें, करगिल लद्दाख में एक ऐसा जगह है जहाँ पे टूरिज्म के हवाले से बहुत पोटेंशियल है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है। उस हवाले से क्या कोशिश आपका रहेगा सस्टेनेबल टूरिज्म को करगिल जैसे जगह में बढ़ाने की? इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जो कारगिल कैंपस हैं, जो कनीज मैम और ऑनरेबल वीसी सर की लीडरशिप में हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो बच्चे गर्मियों में यहाँ पे पढ़ें और विंटर में वहाँ पे आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में टूरिज़्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अहमदाबाद के आसपास भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे उदयपुर है राजस्थान के अंदर, और हमारा कच्छ है जहाँ पर बच्चे आकर एक्सप्लोर नई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Sir, first of all, I would like to thank you for organizing such a beautiful program like Cultural Exchange in Kargil district in collaboration with University of Ladakh and Gujarat University. So what was the theme for organizing such program in Kargil district? मेन जो थीम है, जो ऐसी ये एक कोलैबोरेशन है हमारी। मैंने जैसे अपने ऊपर स्टेज पर भी बोला कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से हमने MOU साइन किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ का एक्सपीरियंस करें, कल्चर को एक्सपीरियंस करें और एकेडमिक्स को एक्सपीरियंस करें कि वहाँ कैसे टीचिंग होती है, वहाँ कैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो हमारे जैसे बच्चे अभी गए थे, 60 बच्चे हमारे गए थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर समझी उन्होंने, जैसे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस किया। इसी तरह उनके जो बच्चे यहाँ आए हैं, हमने भी उसी तरह कोशिश की। तो ये एक आपने आज का कल्चर प्रोग्राम देखा, पर इसके अलावा उनको हमने क्लासरूम टीचिंग यहाँ कैसे होती है, हमारे क्लासरूम कैसे हैं, तो कैसे फैकल्टी से इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें कोशिश की करने की। हालांकि इनका टाइम थोड़ा था आने स्टे का, बट स्टिल हमने कोशिश की कि उनको भी एक फ़ील आए यहाँ की कि लद्दाख यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये प्रोग्रेस कर रही है। तो यही मकसद है एक्सचेंज का कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ में। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गुजरात यूनिवर्सिटी से 19 जर्नलिस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से लद्दाख कैंपस के कवरेज के। तो वहीं लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरफ से गुजरात के लिए कोई एक्सपोजर तो जर्नलिस्ट की तरफ से देखने को नहीं मिला, लेकिन लद्दाख के जर्नलिस्ट को कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो आने वाली दिनों में क्या ये चांस मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये पूरा प्लान नहीं था एक्चुअली। जब मैं और मैडम भी हमारे साथ थे, हमारी टीम जब MOU साइन करने गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी, तब ये जर्नलिस्ट हमें मिले थे, जैसे आप लोग अभी मिल रहे हो उनको। अब उनके वाइस चांसलर ने भी आना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके। तो हमारी उधर मीडिया पर्सन से भी बात हुई थी, तो एक जनरल इन्विटेशन था भी आप भी आइए लद्दाख में, बिकॉज लद्दाख तो हर एक कोई आना चाहता है, ये सच ए यूनिक प्लेस। तो अभी जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया वो मुझे पहले नहीं पता था कि मीडिया पर्सन्स भी आ रहे हैं, तो ये प्लान हुआ कि मीडिया पर्सन्स भी आएंगे, हमने उनको वेलकम किया। अब नेक्स्ट ट्रिप में आप ज़रूर देखोगे कि हम भी अपने मीडिया पर्सन्स को वहाँ लेकर चलेंगे, सर्टनली लेकर चलेंगे। तो ये तो देखिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लद्दाखी और गुजराती सारे एक्सचेंज करेंगे, तो खासकर मीडिया का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि हम भी अपने मीडिया पर्सन्स को ये एक्सपोजर पूरा देने की कोशिश करेंगे। सर आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख द्वारा क्या क्या और नए स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स होंगे सर, एक्सपोजर टूर्स और इनके अलावा आने वाले दिनों में? एक तो एकेडमिक्स पे तो अच्छा जोर है, जैसे मैंने एक मेंशन किया कि हम लीडिंग साइंटिस्ट जो हैं और एकेडमिशियंस हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं। उनकी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, उनको विजिटिंग प्रोफेसर की तरह हम बुलाएंगे। और इसके अलावा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे बहुत ज़ोर है, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर चाहिए। तो अभी कुछ दिनों में ही एक टीम आ रही है दिल्ली से, और वो देहरादून में वो कर रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर पे भी एक टीम आ रही है। तो आप देखें कि हर 15 दिन में कोई ना कोई यहाँ एक्टिविटी चलेगी। तो यही है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी और सारे लद्दाखी एक्सपोजर उनको मिले, ताकि टीम्स आएंगी और अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ बताएंगी। तो बहुत सारी कोशिश चल रही है कि अब फोकस जो है कंट्री का आपने देखा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे, तो हम भी उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे अदर दैन एकेडमिया।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.